Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Sagar, the moderator for this conference call. Welcome to the earnings conference call of Ice Make Refrigeration Limited, arranged by Ariana Matasco to discuss the financial results for Q2 and H1 FY26. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question and answer session. At that time, if you have a question, please press star and then one on your touchtone keypad. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Aryan Rana. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Sagar. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to the Ice Make Refrigeration Limited's Q2 FY26 earnings conference call. Thank you for taking time to join us today. The company's financial results for the quarter are available on our website as well as on the stock exchanges where Ice Make is listed. Before we begin, I would like to remind you that today's discussion may include forward-looking statements. These statements are based on the company's current expectations, assumptions, and projections about future events and are subject to risks and uncertainties, both known and unknown, that may cause actual results to differ materially. We encourage participants to consider these statements in conjunction with the risk factors disclosed in our investor presentations and regulatory filings. We have distinguished management present here with us today. It's my privilege to introduce the leadership team joining us on the call today. Mr. Chandrakant Patel, Chairman and Managing Director. Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy, Mr. Ankit Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Mandar Desai, Company Secretary and Compliance Officer. Today's agenda for call is, during the session, the management will discuss the financial and operational performance for Q2 FY26 and half-year ended 30th September 2025. Key strategic developments and business drivers, emerging market opportunities across our core sector, the company's growth roadmap and priorities. With that, I would like to hand over the call to our Managing Director and Chairman, Mr. Chandrakant Patel, sir. Over, sir. Thanks. धन्यवाद और सभी एनालिस्ट, इन्वेस्टर तथा पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। आइस मैक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड की ओर से आप सभी का Q2 FY26 की अर्निंग कॉन कॉल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आइस मैक परिवार में हमारे नए CEO मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी को का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। श्री रेड्डी ने ब्लूस्टार लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट पोजीशन पर काम किया है। उनका गहरा अनुभव हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अत्यंत मूल्यवान है। मुझे विश्वास है कि उनके जुड़ने से हमारी सेल्फ सर्विस और कोल्ड रूम बिजनेस की क्षमता और भी मजबूत होगी और वे हमारे डेवलपमेंट स्पीड को नई दिशा देंगे। इस क्वार्टर में हमने फर्स्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ किया है। सीजनल अप्स एंड डाउन के बावजूद हमारी ऑपरेशनल टीम ने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को लगातार बेहतर किया। हमारे वर्टिकल कोल्ड रूम, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन, कॉमर्शियल फ्रीजर, कंटेनर शॉप पैनल सभी ने हेल्थी परफॉर्मेंस किया। हमारी करंट ऑर्डर बुक 190 CR के करीब है। हम लोग अपने सर्विस बिजनेस के रेवेन्यू और ग्रोथ पर भी अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। हम अपनी प्रोडक्ट के प्राइस में भी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे, जो हमें करीबन 1% मार्जिन बेनिफिट देगा पूरे साल के हिसाब से। हम फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक 1000 करोड़ की टॉप लाइन की अपने लॉन्ग टर्म टारगेट के प्रति कमिटेड है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे CFO
श्री अंकित पटेल से अनुरोध करता हूं कि वे फाइनेंशियल अपडेट प्रस्तुत करें। Thank you, MD sir. I will now present a brief financial overview for Q2 FY26. For standalone performance of Q2 FY26, revenue from operations stood at 148 crores, that is 47% year-on-year growth and 33% quarter-on-quarter. EBITDA in amount came at rupees 8.78 crores compared to 4.44 crore in Q1 FY26. EBITDA margin improved to 5.90% in Q2 FY26, mainly due to increase in scale of operations. Our profit after tax stood at 1.45 crore, improved from loss of 1.39 crore in previous Q1 FY26. For consolidated performance, revenue from operations stood at 147.49 crore, that is 43% growth in year-on-year and 32% quarter-on-quarter. EBITDA came at rupees 9.70 crore compared to 4.53 crore in Q1 FY26. The EBITDA margin improved to 6.59 in Q2 FY26. Again, the main reason is due to scale of operations improvement. Profit after tax stood at 2.02 crore, improved from loss of rupees 1.47 crore in Q1 FY26. The margin improvement was driven by better capacity utilization. We are showing improvement in margin quarter on quarter. According to our past trends, our first half business contributes around 40% of our annual business and the rest 60% in second half of the full financial year. We remain committed to strengthening our balance sheet and supporting future growth through prudent financial management. Thank you. With that, I request our strategy head, Mr. Nikhil Bhatt, to give you business updates. Thank you, Ankit Bhai. I would like to share with some business updates and our growth strategy going ahead. In Q2 FY26, we have observed a strong traction in cold rooms, refrigeration system, and industrial cooling units. Increase in demand from food processing, dairy, meat, pharma, and healthcare industries driven by structural growth. Positive momentum in 20 cold chain projects across India, expanding inquiries for energy efficient and eco-friendly refrigeration technologies, strengthening presence in eastern, central, and southern regions also. Regarding strategic priority and growth roadmap, there are multi-pronged approach expansion strategies like capacity expansion and utilization of full capacity, automation, technology upgradation, deeper penetration into high potential regions by strengthening channel partners ecosystems. Regarding product innovation and portfolio enhancements, we have energy efficient, low maintenance and sustainable solutions, new age refrigeration and cooling systems for evolving industrial needs. So far as sectoral expansion is concerned, we are observing expansion in agriculture and food supply chains, pharmaceuticals and healthcare cold chain sectors. E-commerce is also increasing in a fast growth. We have a contribution of around 21% in the H1 of these 26. The digital and operational excellence, there improvement in project management as digital monitoring systems as well as the reducing delivery times. We are confident that this initiative and looking to the order on hand of about 190 crores will definitely achieve our goals in the current financial year. Thank you. So should we open the floor for questions? Yes. Thank you very much. We will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and then one on their touchtone phone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Again, to register for a question, please press star and then one.
Our first question comes from the line of Arnav from Ambit Capital. Please go ahead. Hi. Thank you for taking my question. So my first question is with regards to the guidance. So in the last call, we had spoken about achieving 650 crores of revenue with around 8 to 9% of EBITDA margins. So are we sticking with this guidance, or is there any revision to this guidance? जी, हमें 650 पे भी भरोसा है, क्योंकि जनरली हमारा फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ 40-60 का रेशियो होता है, उस अकॉर्डिंग भी हम 650 कर लेंगे। और EBITDA हम लोग 8% पे हम इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड हाफ का बेस बड़ा होता है, तो ऑपरेशन कॉस्ट को एक स्केल का बेनिफिट मिलता है, तो 8% तो मिनिमम हो ही जाएगा। And in your opening statement, you were mentioning a margin improvement of around 1%, which can come through price increases. So just wanted to ask about this. So, I mean, how long will it take for this 1% increase to be realized, and which are the key segments in which these prices can be increased? नहीं, वो 1% के साथ ही हम 8% होंगे। आपने भी देखा कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट में हमारे EBITDA कम थे, और लास्ट 2-3 ईयर कई प्रोडक्ट के प्राइस हमने रिवाइज नहीं किए थे हमारी एग्रेसिव टॉप लाइन ग्रोथ की वजह से, तो वो 1% इंक्रीज करने के बाद ही 8% पे हम लोग पहुंचेंगे। Right. And my last question, is there any update on our next phase of CapEx that we've been discussing, the 150 crore CapEx that we mentioned in some of our previous calls? That is in dialogue phase. अभी उसके ऊपर डिस्कशन चालू है। एक बार फाइनल हो जाए तब हम उसके ऊपर थोड़ा सा और कॉन्क्रीट आंसर दे पाएंगे, लेकिन अभी पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव स्टेज में है और वेरी वेल पॉजिटिव वे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसे ही ये थोड़ा फाइनलाइजेशन वाले बेस पे आता है, हम उसको अनाउंस करके आप सभी के साथ वो डेटा शेयर करेंगे। Okay, thank you for answering my questions and best of luck. Thank you. Thank you. Our next question comes from the line of Resham Mehta from GreenEdge Wealth. Please go ahead. थैंक यू सर। सो बेसिकली एक क्वेश्चन अगेन गाइडेंस पे था कि आप जो 8% मार्जिन जो बता रहे हो, तो वो Q4 का एग्जिट मार्जिन होगा या फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए 8% EBITDA मार्जिन हम करेंगे? क्योंकि अगर हम H1 FY26 का अगर हम मार्जिन देखेंगे तो दैट इज ऑन एन एवरेज अराउंड 5% है। नहीं, ये पूरे साल का मार्जिन 8% हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बिजनेस मिक्स में भी चेंज है। जैसे देखें तो हमारा 40% बिजनेस हमारे फर्स्ट हाफ में होता है और सेकंड हाफ में अराउंड 60% का बिजनेस होता है। तो अभी के फाइनेंशियल के हिसाब से भी हम टैली करें तो वो रेशियो टैली होगा। और मार्जिन इंप्रूवमेंट आप पास्ट में भी देखेंगे तो Q4 में जहाँ पे मेजर बिजनेस होता है, लास्ट ईयर में हमने अराउंड 180 करोड़ का टॉप लाइन किया था, वहाँ पे भी मार्जिन ज्यादा था। तो पूरे साल का अराउंड 8% के आसपास या वैसा मार्जिन हमारा ओवरऑल फुल फाइनेंशियल ईयर का रहेगा, EBITDA मार्जिन। अंडरस्टूड। और दूसरा कि हमारा जो ये केपेक्स जो गाइडेंस था, सो फॉर दिस ये फाइनेंशियल ईयर के लिए FY26 के लिए हम बेसिकली सिर्फ मेंटेनेंस केपेक्स करने वाले थे, बट इफ आई सी ऑलरेडी H1 में हमने कुछ 22 करोड़ का केपेक्स कर लिया है, तो फुल ईयर का केपेक्स गाइडेंस क्या रहेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का? मैडम, ये जो सेकंड आप अभी कैपेक्स देख रहे हो, उसमें भारत का जो कैपेक्स लास्ट फुल फाइनेंशियल ईयर में आया नहीं था, पार्ट उसका है। और दूसरा सेकंड फेज ऑफ कैपेक्स का भी इंक्लूजन है, इसमें हमने एक लैंड परचेज की है एडजॉइनिंग। ओके, सो इसमें स्प्लिट क्या रहेगा? 22 करोड़ केपेक्स जो ऑलरेडी H1 में हो चुका है, उसमें हाउ मच इज द लैंड एंड? अराउंड 10.5 करोड़ इज अराउंड लैंड।
Okay, which is for the phase 2 150 crore capex, right? हाँ, yes. Okay, and H2 में कितना capex expected है? H2 में बहुत ज्यादा नहीं होगा, भारत रेफ्रिजरेशन का थोड़ा बहुत आएगा. अभी सेकंड फेज ऑफ कैपेक्स में अभी डेवलपमेंट है, 3-4 या 5 करोड़ के आसपास का शायद आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट ये वाले फाइनेंशियल ईयर में नहीं होगा उसका. हो सकता है अगर पूरी पेस अगर बढ़े या कोई डेवलपमेंट इसी फाइनेंशियल ईयर में हो तो हो सकता है 15 करोड़ तक भी जा सकते हैं अगर वो डेवलपमेंट हो तो. एंड ये जो फेज 2 जो है विच इज 150 करोड़ वाला जो केपेक्स है, तो आई अंडरस्टैंड ये डायलॉग फेज में है, लेकिन हम इसको फंड कैसे करेंगे? बिकॉज ऑलरेडी आवर डेट टू इक्विटी रेशियो इज अबाउ 1. So how do we plan to like fund this? Is it can you just इसके ऊपर आप थोड़ा बता सकते हो? वैसे डेट में भी अभी थोड़ी बहुत जगह है और बाकी नेक्स्ट रूट थ्रू इक्विटी मोड भी हो सकता है. अभी हमने इक्विटी मोड के लिए भी वी आर ओपन, क्रिस्टलाइज नहीं किया है. दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन कि किस हिसाब से ये हमारा प्रोग्रेस जा रहा है. एक बार ये फाइनल होता है तो इक्विटी मोड भी रहेगा. Understood. And last one, जो working capital है, right? So inventory and debtor days जो है ये अभी elevated ही रहेंगे या because हम new segments में enter हुए हैं in the last few months, या this will come down जो हमारा पहले normalized level हुआ करता था? मैडम अभी देखे तो थोड़ा वर्किंग कैपिटल में थोड़ा स्ट्रेच आया है. मेजरली थोड़ा इंपोर्ट में जो हम कंप्रेसर्स यूज करते थे, जो रॉ मटेरियल, उसमें BIS के इश्यूज थे, तो हमने एडवांस में पूरे साल में चले कंप्रेसर्स और जो रॉ मटेरियल है पैसिफिक चेस्ट फ्रीजर में, तो हमने एडवांस में इंपोर्ट किए हुए थे. तो और हमने थोड़ा इन्वेंटरी लेवल भी हमने बढ़ाया हुआ है स्ट्रेटेजिकली. और CF वर्टिकल का जो बिजनेस है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के थ्रू होगा. तो लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच होगा, लेकिन अभी का जो वर्किंग कैपिटल है उसमें तो ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आएगा क्योंकि मेजर बिजनेस हमारा सेकंड हाफ में होता है. ये वाले हाफ में और थोड़ा सा बिजनेस मिक्स में भी, क्योंकि इस बार रिटेल और कॉर्पोरेट में थोड़ा सा कॉर्पोरेट कस्टमर वाला बिजनेस हमारा बढ़ा हुआ है. तो फुल फाइनेंशियल ईयर में हमारे ये जो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल वाली साइकिल है उसमें ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आएगा. And lastly, if I may, अगर ये जो हमारा return on capital employed है, तो हमें what is our target or our vision, to keep it at what levels? Because see क्या रहा है कि debt levels are increasing, we may raise more equity as well, working capital stretch हो रहा है, right? Margins under pressure है, so effectively our return on capital employed is coming under pressure. So what is the pathway कि in the next 2 years, let's say once all of this is behind, तो हमें कहाँ तक return on capital employed लेके जाना है? हमारा बेंचमार्क जो इंटरनली हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शन में, तो अराउंड 25% ROCE हम बना के रखे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वैसा हमने इंटरनली डिस्कस किया हुआ है. लेकिन जब हम ग्रोथ या कैपेक्स वाले फेज में आते हैं तो इमीडिएट उसका मतलब जो नए प्लांट है उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट आना स्टार्ट होता नहीं है. और फेज वाइज मैनर में आप देखेंगे तो अभी वाले ये जो करंट हमारा फुल फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेगा. लेकिन जैसे जैसे हम 1000 करोड़ की टॉप लाइन प्लस हमारा जो गाइडेंस वाला EBITDA मार्जिन है उसको अचीव करते जाएंगे, तो वो वाला हमारा जो ROCE है वो बैक टू जो फेवरेबल वाली कंडीशन है 20 से 25% वाली, तो वो वाली रेंज में आ जाएगा. क्योंकि हमें एक्सपांशन करना है, ग्रोथ करना है, तो कैपेक्स वाले फेज में ऑलवेज ROCE के ऊपर प्रेशर बनेगा. और जो नए प्लांट है उसको जब तक हम ऑप्टिमम लेवल पे नहीं ले जाते या उसका आउटपुट बिजनेस में आना शुरू नहीं होता तब तक ये थोड़ा प्रेशर रहता है. अभी 3 क्वार्टर का ही परफॉर्मेंस आया हुआ है बिजनेस में, तो वो भी अभी ये पूरा फाइनेंशियल ईयर तो सीजन की उनकी वेरी फर्स्ट ईयर ही रहेगा. तो जैसे जैसे ईयर पास होंगे
और ये वाला बिजनेस भी अच्छा वाला मार्जिन देना स्टार्ट कर देगा, तो वो ROCE वाला जो प्रेशर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। All right. Thank you. थैंक यू। Thank you. Before we take the next question, a reminder to all the participants, you may press star and then 1 to ask a question. Our next question comes from the line of Arjun Mali from Niveshaay. Please go ahead. Hello, sir. Congratulations for the good success numbers, sir. Sir, wanted to know our gross margin has declined around 2%. So is it from the higher contribution from the Sorry to interrupt. Arjun sir, your voice is sounding slightly muffled. May I request you use a handset in case if you are using the speaker mode, please? Sure. So my first question is our gross margin has declined around 2%. So is this due to the high contribution from the continuous panel? बस हमारा क्विक कॉमर्स का बिजनेस और इवन ओवरऑल भी देखें तो कॉर्पोरेट कस्टमर से आने वाला जो बिजनेस है दैट परसेंटेज हैज इंक्रीज। तो इट्स स्टेबल। हमारा जो मार्जिन प्रोफाइल है ओवरऑल सेल्स मिक्स के हिसाब से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होता है, लेकिन कोई उसमें मेजर चेंज या डेविएशन नहीं रहेगा। वो बैक टू नॉर्मल सेल्स मिक्स के हिसाब से और जो कॉर्पोरेट और रिटेल का मिक्स चेंज होगा तो फुल ईयर के बेसिस में फिर से वापस वो वाली पोजीशन पे आएगा। थोड़ा सा पैनल और कमर्शियल फ्रीजर का की वजह से कम हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन टोटल टॉप लाइन जो है फर्स्ट हाफ का उसमें 18% कंट्रीब्यूशन है, तो थोड़ा फर्क तो उसकी ओर से आया ही है ग्रॉस मार्जिन में। ओके सर। एंड सर आप बता पाएंगे मीन्स कि अभी जो हमारा वर्टिकल वाइज बिजनेस होगा उसमें किस तरीके का रेवेन्यू आया है? कोल्ड रूम है, उसमें अराउंड 49% का कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन 3%, ओल्ड कॉमर्शियल वर्टिकल में 15-16% के आसपास है। ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन का 5% है। अमोनिया का अराउंड 7% है। प्रोजेक्ट्स का 4% के आसपास है। कंटिन्यूस पैनल 10% है और कॉमर्शियल फ्रीजर अराउंड 6-7% के आसपास। ओके। एंड लास्टली सर मैंने कभी जो न्यू वर्टिकल्स वगैरह है, जो न्यू बिजनेसेस, उसमें हमारा EBITDA लॉस वगैरह क्या रहा होगा सर? क्या सॉरी? ऑपरेटिंग मीन्स लॉसेस वगैरह किस तरीके का रहा होगा? थोड़ी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आई एम नॉट एबल टू। You're sounding muffled again. Okay, I'm asking Renta, what was the EBITDA real loss including the new business? न्यू बिजनेस में जैसे अभी हमने शुरू किया हुआ है, हमने वर्टिकल वाइज EBITDA थोड़ा सा निकालना अभी एज ऑफ नाउ डिफिकल्ट है, बट ये वाले फाइनेंशियल ईयर में वो ब्रेक इवन पोजीशन में और EBITDA मार्जिन में भी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट वाले स्टेज पे रहेंगे। ओके, गॉट इट सर। एंड सर नेक्स्ट ईयर में हमने जो EBITDA वाला मार्जिन ट्रेजेक्टरी दी है वो वाले मार्जिन में वो कंट्रीब्यूट करे। ये वाले फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा मार्जिन रिड्यूस होगा ये नए वर्टिकल की वजह से, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है उनका फुल फ्लेज में। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन मतलब ईयर वाइज जैसे इंप्रूव होगा थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन पे वो करेंगे। ओके सर, आपने एक कार्य को अभी हमारा कंप्रेशर का इन्वेंट्री का रीजन दिखाया था, तभी वर्किंग कैपिटल जो बढ़ाया अपना, तो मतलब जो हमारा लेगेसी और जो न्यू डिवीजन रहेगा तो इसमें यही डिफरेंस रहेगा वर्किंग कैपिटल का, या फिर और कोई भी रीजन रहेगा? एक्चुअली नए जो दोनों ही प्रोडक्ट है उनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अभी बिजनेस नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आइसपैक रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में पुराना है, लेकिन ये प्रोडक्ट दोनों का नेचर है मास प्रोडक्शन, वो हमारा नया एक्सपीरियंस है, तो हम एक सेफ्टी के लिए इन्वेंट्री लेके चलते हैं। दूसरा हमारा जो ओल्ड बिजनेस का भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 550 CR है, और हमारी ओल्ड वर्टिकल से हम लोगों ने टारगेट किया है 500 करोड़ हम बिजनेस करेंगे। तो जो हम सीजन ऑफ सीजन में प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम ज्यादा करते हैं उसको हम लोगों ने मेंटेन किया है। थोड़ा बहुत ऑफ सीजन में भी हम लोग इन्वेंट्री कैरी करेंगे WIP में या FC में, तो इसी वजह से इन्वेंट्री थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है।
और यही वर्किंग कैपिटल साइड पे भी रहेगा मैं? यस। ओके, थैंक यू सर. Thank you. Participants, you may press star and 1 to ask a question. Our next question comes from the line of Ruchika Modi from 360 ONE Wealth. Please go ahead. थैंक यू सर. मेरे 2 क्वेश्चंस है. एक आपका व्यू चाहिए था इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को लेके, क्योंकि सो वी रेड द न्यूज़ दैट वरुण बेवरेजेस इज आल्सो गेटिंग इनटू रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट सेगमेंट. तो थोड़ा बहुत व्यू चाहिए कि इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा आ रहा है. एंड सेकेंडली, जो अभी आपने बोला कि FY28 तक जो 1000 करोड़ हमारा रेवेन्यू टारगेट है एंड EBITDA मार्जिन टू गेट टू द नॉर्मलाइज्ड रेंज ऑफ 10 to 11%. अज्यूमिंग कि 150 करोड़ वाला केपेक्स जो अभी अंडर डिस्कशन है, इफ दैट गोज थ्रू, सो even if we achieve the 1000 crore turnover, are we seeing a delay in EBITDA margin of 10-11% and ROCEs of 25% that you target internally? मैडम, ROC में अगर कैपेक्स करेंगे तो परसेंटेज, मतलब उसको जब तक ऑप्टिमम यूज नहीं करते तब तक ROC इंप्रूव नहीं होगा. तो ये वाले जो फर्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स है उसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आएगा तो ROC इंप्रूव हो जाएगा. अगेन हम नया कैपेक्स करेंगे तो थोड़ा सा उसको भी ब्रीथिंग पीरियड हमें देना पड़ेगा क्योंकि वो ऑप्टिमम लेवल तक आए. बट 100% या फुल फ्लेज कैपेक्स का जब यूटिलाइजेशन शुरू होगा तो 25% के आसपास का ROC हम हर कैपेक्स से जनरेट कर पाएंगे. तो अभी के लिए मतलब FY28 सिर्फ रेवेन्यू टारगेट 1000 CR हमें मान के चलना चाहिए. ROCs and EBITDA margins might get a little delayed also, right? EBITDA मार्जिन हमें लगता है कि मैप हो जाने चाहिए. ROC में हमें लगता है शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो. हमने एग्जैक्ट वो वाला वर्किंग नहीं किया है क्योंकि ये क्या होता है कि कैपेक्स, हमारा मॉडल कैपेक्स वाला है तो थोड़ा सा आउटपुट आने में और मैक्सिमम लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हमें चाहिए वो प्लांट की कैपेसिटी पे हमें रीच करने के लिए. तो ROC भी हम अचीव नहीं कर सकते, वैसा हम कमिट नहीं कर रहे हैं. लेकिन कैपेक्स वाला अगर कोई साल रहता है और फुल फ्लेज यूटिलाइजेशन नहीं होता तो एक आध साल ऊपर नीचे ये मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ROC में. Got it. And on the competitive landscape, sir? मतलब हम आपको पीयर कॉम्पिटिटर्स की डिटेल बताए तो जैसे ब्लू स्टार है, वोल्टास है, कैरियर हमारे जो नजदीकी कॉम्पिटिटर्स में आते हैं, बड़े कॉम्पिटिटर में. कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और फ्रीऑन जो कोल्ड स्टोरेज का वर्टिकल है, कोल्ड रूम वाला, उसमें वो हमें कम्पीट करते हैं. फिर ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन की बात करें तो सुरक्षा है, सब जीरो है, राइनेक है, वो हमें कम्पीट करते हैं. अमोनिया वर्टिकल में ये राइनेक है, फ्रिक है, आर्कटिक भी कुछ मैटर में आर्कटिक रेफ्रिजरेशन भी हमें कम्पीट करता है. कंटिन्यूअस पैनल में अगर बड़े कॉम्पिटिटर की बात करें तो किंग्सपैन जिंदाल है, राइनेक है, फिर मैटेक्नो है, अल्फा है, अल्फा PEB लिमिटेड, लॉयड है, बनल है, सूची फॉर्म करके है जो लोकल है यहाँ, कोरिया पर्फ है, ईपैक है. कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन बात करें तो ब्लू स्टार, वोल्टास, कैरियर अगेन आता है. फिर वेस्टर्न है, रॉकवेल है, हायर्स है. एक्चुअली आपका जो एक पॉइंट था जानने का कि आप वरुण बेवरेजेस का आपने एग्जांपल लिया था कि वो भी अभी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, रेफ्रिजरेशन में ज़्यादा आ रहे हैं, उसका आपको रिप्लाई चाहिए. मगर जो इंडियन मार्केट अभी जो फेज पे ग्रो हो रहा है और कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज और पर्टिकुलर ये जो फ्रीजर्स या इजी कूलर की बात करें तो जो डिमांड के सामने जो ग्रोथ है वो अप्रोप्रिएट है. और अभी मार्केट में जो कंडीशन है वो हिसाब से अगर कोई भी नया प्लेयर आता है तो मार्केट में इतना ज़्यादा इफेक्ट हमें नहीं पड़ेगा क्योंकि डिमांड भी साथ में इतना ही ग्रो हो रही है और सप्लाई भी इतना ही हो रहा है. तो हमारा जो बिजनेस है वो दैट वी कैन बी सस्टेनेबल, दैट मे नॉट बी एनी प्रॉब्लम. Got it. Thank you. Thank you.
Our next question comes from the line of Mausam Shah from Wealth Guardian. Please go ahead. हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर। सिर्फ मुझे ये जानना था कि अपनी जो ऑर्डर बुक है 190 करोड़, हेलो Mausam sir, we Hello. have lost your audio. Please go ahead. तो ऑर्डर बुक है जो अपनी 190 करोड़, उसमें कौन से रेवेन्यू मिक्स पे हमें I'm sorry to interrupt, ma'am, again. Your audio is coming through very low. हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? This is much better. Yes, ma'am. तो हमारा जो रेवेन्यू मिक्स है, ऑर्डर बुक है, वो कौन से रेवेन्यू से जनरेट होने वाला है? कुछ ऑर्डर बुक के बारे में बता सकते हैं? जो हमारा अभी 190 करोड़ का जो अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑन हैंड है, तो वर्टिकल वाइज देखें तो कोल्ड रूम सबसे ज़्यादा है, 33 करोड़ के अराउंड है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमर्शियल और डेयरी वर्टिकल, जहाँ 15 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग है आज पे। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में 3 करोड़ है। रिफर वन जो है ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में 5 करोड़। एमोनिया वर्टिकल में अराउंड 52 करोड़ है। और जो कंटिन्यूस पैनल का जो नया लाइन है उसमें 35 करोड़ का है। चेस फ्रीजर्स डिवीजन में 1 करोड़ का ऑर्डर रन है, क्योंकि अभी उसकी शुरुआत है। ऑर्डर तो गोइंग फॉरवर्ड नवंबर के बाद उसके ऑर्डर्स के ज़्यादा प्लानिंग होते हैं। और जो प्रोजेक्ट ऑर्डर्स है जो उसमें अराउंड 45 करोड़ का है। तो ये हमारा अभी तक का प्रोडक्ट मिक्स है जो ऑर्डर हमारे हाथ में। ये कितने टाइम में डिलीवर होगा? हमारा जो एवरेज टाइम है वो 45 डेज होते हैं, डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जो प्रोजेक्ट होते हैं बड़े, उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, 3 महीने भी हो सकता है या 6 महीने, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द प्रोडक्ट। बट जो छोटी प्रोडक्ट है उसमें तो हम 1 हफ्ते में भी डिलीवर कर सकते हैं। और 3 महीने एवरेज जो बोले तो 3 महीने में एक ऑर्डर खत्म हो सकता है। कोल्ड रूम की बात करें तो 45 डेज से शुरू होके शायद 6 महीना भी हो सकता है। ओके। और ये ऑन गोइंग ऑर्डर बुक है, इसलिए नए आते रहते हैं। ये पुराने जो है वो क्लोज होते हैं। ओके। और अगर हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में बात की जाए तो हमारा कंट्रीब्यूशन वेस्ट से ज़्यादा है। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप, कितना वेस्ट से आ रहा है और नॉर्थ से आ रहा है? हमारा वेस्ट में अराउंड 50% के आजू बाजू हमारा है रेवेन्यू शेयरिंग। और नॉर्थ और साउथ का जो H1 की बात करें तो अराउंड 16% है। और ईस्ट में 12% है। जो लास्ट H1 में जो हमारा ईस्ट में ज़्यादा था, क्योंकि एट दैट टाइम एक बड़ा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट की वजह से वो ईस्ट में लास्ट ईयर में ज़्यादा था। तो ओवरऑल 50, 16 और 12% के आजू में जो है। एक्सपोर्ट में 3% है। और जो नेशनल डीलर जो है हमारा OEM है वो 2% के अंदर। ओके ओके, फाइन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Participants, you may press star and then 1 to ask a question. Our next question comes from the line of Shubhanu from Three Heads Capital. Please go ahead. Hello. Hope I am audible. Sir, can one more time our revenue mix? Sorry, I missed that. Hello. आपकी आवाज नहीं आ रही। Hello. हाँ जी बताइए। Is this right? Hello. Yes, this is much better. Please go ahead. Okay. Sir, can you tell me our revenue mix one more time? I missed that. Okay. Sales mix, revenue mix you are asking. Yeah. The cold room is 33 crore. Commercial. Sorry, in terms of percentage. Sales percentage. Cold room contributes around 49%. Industrial refrigeration 3%. Commercial refrigeration around 15%. 15. Transport refrigeration. Commercial refrigeration around 15%. 15%. That is old commercial I'm talking about. Old commercial. Okay. Next. Transport refrigeration 5%. Okay. Ammonia 7%.
Next. Project business 3 to 4%. Continue panel 10%. And new commercial freezer vertical around 6 to 7%. Okay. Thank you, sir. Best of luck. Thank you. A reminder to all the participants, you may press star and then 1 to ask a question. As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to the management for closing comments. Thank you everyone for joining us today and for your valuable time, questions and continued engagement. We appreciate the trust and support of our investors, analysts and stakeholders. We look forward to connecting with you again in the next quarter. Have a great day ahead. Thank you. Thank you. On behalf of Ice Make Refrigeration Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.